के लिए अगर चालू रखना है या पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर चालू करना है या पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ करना है, तो हम टाइमर्स यूज करते हैं. ओके, so there are three types of timers. One is on timers. That means it will delay to on the motor or on the output devices. Then there are off timer. That means it will delay to turn off the output device or to turn off the output motor. And then there is pulse delay. So pulse delay means if you want the output to be on for a certain period of time, then it is a pulse delay. Okay, so these are the three types of timers that we have studied in the last lecture. In today's lecture, we will be seeing the counters. Okay, so counters means the number of instances. Okay, now for example, to give the example of this counter, I will explain one application. Now consider this is a conveyor belt. Okay, so this is a conveyor belt. And from this conveyor belt, some products are being transported. And just below the conveyor belt, there is one packing box. So this is kind of a packing box. And uh, this packing box contains only 5 products. Okay, we need to pack 5 products in every box. So this is our requirement. And this process is automated by using PLC. Now here one sensor is provided in the form of, say, ultrasonic sensor is there. So this is a sensor, maybe ultrasonic sensor. That means there is a transmitter and receiver, and every time the transmitter transmits the electromagnetic rays and it is being cut by this product, and receiver receives the transmitted rays. It will detect the product. Okay? So this is a sensor which will count the number of products. Okay? And this is one operator which is having a reset button. So this is a reset button. Now this sensor will detect the 5 products, and here there is a pneumatic cylinder. Here there is a pneumatic cylinder. So this is a pneumatic cylinder, and this pneumatic cylinder is connected, or this pneumatic cylinder is operated by a solenoid valve. Okay, this is a solenoid valve. So this solenoid valve actually operates the extension and retraction of this pneumatic cylinder. So this is a pneumatic cylinder.
and this pneumatic cylinder is being operated by the solenoid valve. So, do you understand the situation? Here there is a conveyor belt. From this conveyor belt, certain products are being conveyed or certain products are being transported, and this product will fall into this packing box. We want every box must contain 5 products, and once when this conveyor belt gets on, it will detect the first product, and first product will go into the box. Then second product will come, it will go into the box, and then third product comes into the box, fourth product come into the box, and fifth product come into the box. Okay, and once the box is filled with 5 products, then this pneumatic cylinder must operate, and it must push the packing box to another conveyor for say dispatch. So this is another conveyor. This is another conveyor. So this is another conveyor. And this box is being pushed to another conveyor for the dispatch. So this is the situation, and this operator is there, which will reset it or initiate the process. So here the need of the situation is this sensor must give uh, this sensor will give the pulses for the number of products, and here we need to count the instances. See how many products the sensor has detected. So to count the instances, we want this counters. Okay? So PLC uses these counters to count the number of instances. Okay, so if we set the counter for 5, then this once the sensor detects the 5 products, the counter will give the instruction to the solenoid valve, and the solenoid valve operates the pneumatic cylinder. That means the pneumatic cylinder get extended, and this packing box will transfer to another conveyor, and from that conveyor it will go to the dispatch section. Okay. So for such type of applications, these counters are used. Okay. या फिर अगर सपोज कोई ब्रिज है, एक ब्रिज है, तो दिस इज अ ब्रिज. ये ब्रिज जो है वो ज्यादा मजबूत नहीं है. ये ब्रिज एट अ टाइम सिर्फ 10 लोगों को ही जो है उसका उसका वजन सहन कर सकता है. अगर ऐसा अगर ब्रिज है, तो यहाँ पे अगर हमको 10 लोगों को अलाउ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंसर लगाएंगे. यहाँ पे एक सेंसर रहेगा, और उसको उसमें पीएलसी काउंटर यूज करेंगे, और जैसे ही 10 लोग ये ब्रिज के ऊपर आते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक बैरियर लग जाएगा. यहाँ पे जो है एक बैरियर लग जाएगा, और जब ये 10 लोग ये ब्रिज से दूसरे तरफ चले जाएंगे, उसके बाद ये बैरियर जो है ये ओपन होगा. तो इस तरह की अगर सिचुएशन है जहाँ पे हमको नंबर ऑफ इंस्टेंसेस काउंट करना है, तो ऐसी जगह पे ये जो काउंटर्स है ये यूज होते हैं. तो आपको ये समझ में आया कि काउंटर्स कहाँ पे यूज होते हैं, और बेसिकली कौन सी सिचुएशन में काउंटर्स यूज होते हैं. तो इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लो. Okay, so I assume that you have understood the situation
where these counters are required. So we have understood uh, the situation or the application where the counters are required. Now we will see how these counters are being implemented in the PLC ladder programming. Okay? So we'll see how these counters are being implemented. Okay. So here in this diagram we have implemented the counter for this conveyor belt application. Okay. So first is X1. So we know that in the PLC ladder diagram, all the input devices are arranged on the left side of this ladder diagram, and all the output devices, including the timers and the counters, are arranged on the right side. So here, this X1, this is the switch which is operated by the operator. Okay. So everything is set, the products are coming from the conveyor belt, the box is ready to receive the product. Okay. The cylinder is in retracted position, and operator presses the reset button. That means it initiates the process. Okay. So once the reset button is pressed by this operator, that means this X1. So this is the reset button operated by the operator. So this is operated by operator. Okay. So once the operator presses this button, it changes the status. Now this button is normally open or normally closed. What is the state of the button? ये normally open है कि normally closed है? Open, normally open. Normally open है, right? Correct. Normally open है. That means unless and until operator presses this button, it won't change its status. That means it won't allow the 24-volt supply to be entered into this output device.
or this device. Okay. So when the operator presses this reset button, so this is X1. So the X1, uh, the, the number or the term that we have used for this switch is actually here. So this is X1. So when operator presses this X1, this normally open switch gets closed and the 24-volt supply is provided to RST. Now this RST is actually reset the counter. Okay, it reset the counter. Reset the counter. Now there are two types of counter. One is up counter. Hello. Hello. So, nice. So there are two types of counters. That is up counter and down counter. Up counter and down counter. So there is not much of a difference in up counter and down counter. जैसे कि काउंट अप रहता है और काउंट डाउन रहता है. तो काउंट अप means it will start from 0 to 5. For example, if we need to reset the counter for 5 instances, then the up counter will start from 0, then 1, then 2, then 3, then 4, and 5. Okay, so in this way, the counter instance is measured from 0 to 5, whereas in down counter, if you have set the counter for 5, then it will count down 5, 4, 3, 2, 1, and 0. So this is the only difference between the up counter and the down counter. The way of counting the instances is from 0 to 5 in case of up counter and from 5 to 0 in case of down counter. So this is the basic difference between the two types of counters that are available, up counter and down counter. Okay. So once the operator presses the switch X1, the counter resets it. Okay, that means the counting comes out to be 0. यहाँ पे जो है ये जो instances है वो 0 पे आ जाते हैं. ओके, 0 पे सेट होते हैं. हम इसकी अप काउंटर की बात करते हैं यहाँ पे अप काउंटर में. तो ये 0 पे रीसेट हो जाता है. तो now once the counter is set at 0, then what will happen? It starts counting. Okay. Now once it is set to 0, this is the counter. This is counter. Now it will start counting the instances. Now this X2 is actually the sensor. Actually, हम किसके instances को count कर रहे हैं? सेंसर जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो प्रोडक्ट के इंस्टेंसेस को हम काउंट कर रहे हैं. okay? तो ये जो X2 है, X2 स्विच, ये कौन से इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है? सेंसर को. okay? तो ये जो X2 सेंसर है, यहाँ पहली बार जब प्रोडक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई करेगा, तो यहाँ पे उतने देर के लिए ये स्विच जो है वो क्लोज हो जाएगा. ये स्विच क्लोज हो गया तो इसका काउंटिंग जो है 0 पे जो सेट था वो 1 हो जाएगा. ओके. फिर जैसे ही ये प्रोडक्ट यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये फिर से नॉर्मली ओपन हो जाएगा.
ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। फिर दूसरा प्रोडक्ट आएगा, दूसरा प्रोडक्ट आया तो ये जो X2 सेंसर है जो कि नॉर्मली ओपन था, ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे काउंटर जो है ये 2 काउंट करेगा। फिर ये प्रोडक्ट भी जो है, ये प्रोडक्ट नीचे चले गया, ये प्रोडक्ट भी नीचे चले गया। फिर तीसरा प्रोडक्ट आया, तीसरा प्रोडक्ट आया, ये फिर से नॉर्मली ओपन था, जैसा ही तीसरा प्रोडक्ट आया फिर ये क्लोज हो गया, तो यहाँ पे थर्ड काउंटर काउंट किया। फिर जैसे ही ये नीचे चले गया तो यहाँ पे फिर ये ओपन हो गया। फिर चौथा प्रोडक्ट आया, यहाँ पे चौथा प्रोडक्ट आया, फिर से जो सेंसर है क्लोज हो गया, यहाँ पे इसने 4 काउंट किया और ये चौथा प्रोडक्ट भी नीचे चले गया, तो यहाँ पे फिर ये ओपन हो गया। फिर पांचवा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, जैसे पांचवा प्रोडक्ट डिटेक्ट किया ये फिर से क्लोज हो गया, काउंटर ने 5 जो है ये काउंट किया। और यहाँ पे हमने रीसेट में, ये रीसेट में जो काउंटर है 0 पे सेट हो गया और मैक्सिमम जो हमको काउंट करना है इंस्टेंसेस, ये हमने 5 यहाँ पे दिए। और जैसा ही काउंटर जो है ये 5 डिटेक्ट कर लेता है, वैसा ही ये जो रिले स्विच है, काउंटर का रिले स्विच, काउंटर में रिले स्विच है, तो ये रिले स्विच जो नॉर्मली ओपन था, जो कि जब काउंटर 0 था या 2 था या 3 था या 4 था, तब तक ये नॉर्मली ओपन था। जैसे ही ये काउंटर जो है ये हमने सेट किए हुए नंबर के बराबर हो जाता है, तो 5 when 5 is equal to 5, when the counter count the instances of 5, that moment this relay switch of the counter, see here this is CO, counter is CO and this is also CO, that means this is the internal relay switch, so this is the relay switch of counter. And once it detects the 5 instances, this relay switch gets closed and the output wire, it will start operating. The output will start operating. And what is the output over here? Here the output device is solenoid valve. Solenoid valve. This is the output device. That means this Y0. So this is the output device, solenoid valve. This will operate and this will the compressed air is inserted into the cylinder, and this port is connected to exhaust, and the piston is being pushed. The piston is being pushed, and you will get the extension motion of this cylinder, and this box is pushed to the another conveyor, from where that box is dispatched to the dispatch section. Okay, so this is how this counter works. Okay, so first we will learn this one more time. What is this X1? That means operator presses the reset button. Okay, that means he has joined the duty. वहाँ पे मशीन बंद है, मशीन उसने चालू किया और इसको रीसेट कर दिया। तो रीसेट कर दिया तो उसके बाद ये इसने काउंट भी यहाँ पे डाल दिया कि हमको ये जो बॉक्स है इसमें 5 प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इसने काउंटर को रीसेट किया 5 पे, काउंटर का जो काउंट नंबर है उसको 0 पे रीसेट किया। तो ये एक पुश बटन प्रेस किया जिसकी वजह से काउंटर जो है 0 पे सेट हो गया और उसने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट द काउंटर शुड मेजर इज 5। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सेंसर है X2, ये X2 वाला सेंसर ये इंस्टेंसेस को काउंट करना चालू किया। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट,
तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट और पांचवा प्रोडक्ट. The moment it detects the fifth instance, the moment it detects the counter detects the 5 instances from the sensor, it immediately closes the relay switch of the counter. And earlier the relay switch was open. That means no supply is provided to the solenoid wall, no supply to the solenoid wall. But the moment this counter reaches to fifth instance, this relay switch gets closed. The supply will go to the solenoid wall. This solenoid wall comes into the picture. It reverses the position of the compressed air, and because of that, we get the extension motion of this pneumatic cylinder, and this box is being pushed on another conveyor belt. Okay, so this is how this counter works. Okay, so I hope that you have understood this counter. Okay, इसमें इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल या एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया, इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लो. No, sir. ओके, और किसी को कोई डाउट है? Now next we will see the latch circuit. Okay, latching. Now next we will see the latch logic. Now latch. So logic we know. Logic means the logic we will develop. Okay. The sequence of instructions that we develop for particular application. Okay. But what we mean by latch? What is latch? What is the dictionary meaning of latch? लैच का क्या मतलब कहते हैं? लिड. लैच बोला तो लिड. लिड यानी कवर या ढक्कन. नहीं, लैच इज नॉट लिड. तो ये लैच क्या है? आपके घर के दरवाजे पे लैच होगा, पर्टिकुलरली फ्लैट सिस्टम में, या फिर आजकल तो सभी जो डोर्स है, मेन डोर जो रहता है घर का, जो हॉल को लगा हुआ मेन डोर रहता है, उसमें लैच लगा हुआ रहता है. So latch is nothing but locking. It is a kind of a lock. So latching means लॉक करना, किसी चीज को जो है लॉक करना. वो दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लॉक, लैच, सॉरी. तो दिस लैच इज अ काइंड ऑफ अ लॉक. It is a lock in some different situation. Okay? Latch. यानी लॉक जो है वो अंदर से या बाहर से कहीं से नहीं खुलता है, उसको चाबी चाहिए. लेकिन लैच जो है वो एक साइड से अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता है. तो दिस इज इट इज अ लॉक, बट इन सम डिफरेंट सिचुएशन. ओके, तो
latch is nothing but lock. Now, I will give one situation where this latch is required. Now, for example, this is your flat system. This is your building, your apartment. This is your apartment. Or a multi-story building. And there is one water sump. Okay? This is water tank or water sump at the ground level. And this is the corporation water. This is water from corporation. NMC. And then there is a motor pump. Okay, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है और ये पंप जो है ये ऊपर में एक टैंक है. दिस इज अ वाटर टैंक. And this pump takes the water from the water sump and it discharges the water in this water tank. Okay? And there are, if you see the control panel, then this is on switch and off switch. So there are two types of switches. अब यहाँ पे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ऑन स्विच प्रेस करते हो. ऑन स्विच प्रेस किया तो ये मोटर जो है ये चालू हो जाती है. ओके, और पानी जो है ये टैंक में आना चालू हो जाता है. अगर इसका ये वाले सिचुएशन का अगर आपने लैडर प्रोग्रामिंग बनाए तो अगर सपोज हमने ऐसा लैडर प्रोग्रामिंग बनाया तो यहाँ पे क्या है, एक ऑन स्विच है. ये हमने पहले जो है हम देखते हैं इसका लैडर प्रोग्रामिंग कैसा बनता है. यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कितने हैं, इसमें मुझे बताओ इनपुट डिवाइस कितना है और आउटपुट डिवाइस कितना है. सिंड्रेला आप हो क्या लेक्चर में? सिंड्रेला नहीं. अर्णवी हमें सब लोग सो रहे हैं क्या? ओके, ध्रुवित. Yes, sir. चैतन्य से चैतन्य बताओ. यू अनम्यूट योरसेल्फ चैतन्य. चैतन्य अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. One input and one output. One input and one output. Okay, Chaitanya says one input and one output. That means this is input and this is output. Okay. Now Chaitanya, ये मोटर का ये जो इनपुट स्विच है ये नॉर्मली ओपन रहेगा कि नॉर्मली क्लोज रहेगा? ये जो स्विच है सपोज हम इसको x1 मान लेते हैं. ये x1 जो एक इनपुट बोला है वो कौन सा स्विच है, ऑन वाला है कि ऑफ वाला है? ये ऑन स्विच है कि ऑफ स्विच है? On switch है. ये ऑन स्विच है.
अच्छा, ये हमें तू पहले तो ये बता कि इसमें कितने इनपुट डिवाइसेस है और कितने आउटपुट डिवाइसेस है। सर 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। 1 इनपुट 1 आउटपुट है। ओके, इनपुट डिवाइस कौन सा है? सर ये इनपुट डिवाइसेस कौन से रहते हैं? सेंसर्स रहते हैं, स्विचेस रहते हैं, ये सारे इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे कोई सेंसर है क्या? हमने अभी कोई सेंसर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, यानी यहाँ पे यस सेंसर सर, नहीं। नहीं किया। स्विचेस है, स्विच है, यस सर। स्विच है। हमने दो स्विच जो है यहाँ पे कंसीडर किया है, ऑन स्विच एंड ऑफ स्विच। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे कितने इनपुट डिवाइसेस है? यहाँ पे दो इनपुट दो डिवाइसेस है, दो इनपुट। टू इनपुट डिवाइसेस। ये वाला जो है ये X1 है एंड ये X2 है। ओके, तो X1 डिवाइस बोला तो ऑन वाला स्विच। आपके घर में जो मोटर रहती है उसमें दो डिवाइस रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, ये दो बटन रहती है सभी इसको। तो ये जो है ये ऑन वाला स्विच है, ये वाला ऑफ वाला स्विच है। और आउटपुट डिवाइस कौन सा है? हाँ, आउटपुट डिवाइस, यस, पंप। पंप। what? इट इज अ पंप, राइट, करेक्ट। पंप या मोटर, ये पंप को जो मोटर लगी हुई है, ये जो है ये आउटपुट डिवाइस है, करेक्ट। तो ये जो है ये होगी मोटर Y0, जनरली आउटपुट को Y0 बोलते हैं। तो ये Y0 पंप बोलो या मोटर बोलो, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। ओके, अब दो इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब यहाँ पे दो स्विचेस मुझे बनाना पड़ेगा। दिस इज X1, दिस इज X2। अभी मुझे बताओ कि ये दोनों मैंने अभी नॉर्मली ओपन सिचुएशन में रखी हुई है। अभी अगर मैंने ऑन स्विच प्रेस किया, ऑन स्विच प्रेस किया तो ये मोटर चालू होगी क्या? यहाँ पे मैंने ऑन स्विच प्रेस किया तो मोटर चालू होगी क्या? नो। सर वो ऑफ सीरीज तो उसके सीरीज में है ना, तो चालू नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। तो फिर, क्योंकि अगर मैंने ऑन स्विच प्रेस किया तो X1 जो है ये नॉर्मली ओपन था तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से सप्लाई जो है लेकिन यहाँ पे आके रुक जाएगा, X2 पे आके रुक जाएगा। यस सर। तो यहाँ तक तो सप्लाई जाएगा लेकिन मोटर चालू नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है ये बराबर नहीं है। तो कौन सी अरेंजमेंट सही रहेगी? पैरेलल वाली। पैरेलल पैरेलल वाली? मतलब सर X1 और X2 पैरेलल में चाहिए, तो अगर X1 ऑन किया तो वो चल जाएगा। अगर नहीं ठीक है, अपन ने पैरेलल में लगाया इसको हमने पैरेलल में लगाया। नहीं, फिर ऑफ करते वक्त कैसे होगा? X1, this is X2। हमने ऑन बटन प्रेस किया, ऑन बटन प्रेस किया तो ये क्लोज हो गया, सप्लाई यहाँ पे जाएगा, मोटर चालू हो जाएगी, करेक्ट है? हाँ सर। पंप चालू हो जाएगा। पंप जो है वो कितने देर के लिए चालू होगा? जितने जब देर तो तू मोटर पे बटन प्रेस करके रखेगा। यस। अगर तुझे ये पूरा पानी ऊपर वाले टैंक में पहुंचाने में अगर सपोज 1 घंटा लगता है, तो तुझे 1 घंटा जो है वो ऑन वाला बटन दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तूने बटन दबाया ये नॉर्मली क्लोज हो गया स्विच, यहाँ से सप्लाई जो है आउटपुट को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पे ऑन करके छोड़ दिया तो यहाँ पे ये नॉर्मली ओपन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, इसको सप्लाई नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे जो है मोटर बंद हो जाएगी। तो ऐसा अगर अरेंजमेंट अगर अपन बनाते हैं तो उस केस में अगर हमको 1 घंटा मोटर चालू रखना है तो 1 घंटा बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो अरेंजमेंट है, अच्छा ठीक है, हमने हमने मान लिया कि 1 घंटा हमने प्रेस करके रखा, तो ये ऑफ स्विच का कोई काम ही नहीं है। वैसा तो ये ऑफ स्विच का तो कोई काम ही नहीं है, बराबर, क्योंकि हम 1 घंटा बटन प्रेस करके रख रहे हैं और 1 घंटा वहां पे खड़े हैं। जैसे ही स्विच छोड़ दिया पंप बंद हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा स्विच है इसका तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये फिजिबल है क्या? हमको 1 घंटा वो स्विच जो है, हम डोरबेल के लिए ठीक है, डोरबेल हमको अगर 1 सेकंड चाहिए तो हम 1 सेकंड के लिए बटन दबाते हैं, छोड़ देते हैं। 5 सेकंड चाहिए तो 5 सेकंड डोरबेल का बटन दबाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक? लेकिन वो जो पंप है या मोटर है वो अगर 1 घंटा चालू रखना है तो 1 घंटा अपन बटन दबा के नहीं रख सकते। तो अभी कैसा 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 इसको सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम? तो पैरेलल वाला जो अरेंजमेंट है वो बराबर नहीं है। तो अभी अगर यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मली क्लोज कर दिया, ये जो स्विच है ये नॉर्मली क्लोज रहेगा। ये जो x2 वाला है, दिस इज x1, तो x1 बोला तो ऑन स्विच और x2 बोला तो ऑफ स्विच। तो अगर ऑन स्विच मैंने प्रेस किया तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और मोटर चालू हो जाएगा। लेकिन ये केस में भी मुझे जो है अ, अगर 1 घंटा मोटर चाहिए तो 1 घंटा जो है वो प्रेस करके रखना पड़ेगा, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या करूंगा कि ये लैच वाला सर्किट यूज करूंगा, ये लैच लॉजिक जो है ये यूज करूंगा। तो इसमें क्या होगा कि ये पहले तो ये जो प्रॉब्लम है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को अगर हमने समझा तभी जो है हम इसके सॉल्यूशन पे काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो मैंने सर्किट बनाया इसमें क्या है कि इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि अगर 1 घंटा अगर मोटर चलानी है तो 1 घंटा जो है वो ऑन वाली बटन जो है वो प्रेस करके रखना पड़ेगा और ऑफ बटन का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसको हमने ये लैच लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, दिस इज सपोज M0, ये मोटर है तो इसको अगर M0 नाम दिए तो ये इसका इंटरनल रिले वाला जो लॉजिक है, इंटरनल रिले वाला लॉजिक ये वाला यूज करेंगे। और ये जो है ये क्या है, दिस इज M0, दिस इज इंटरनल रिले स्विच ऑफ मोटर। यहाँ पे देख रहे हैं M0 और यहाँ पे भी मैंने M0 यूज किया। दैट मीन्स ये दोनों का क्या है, कनेक्शन है। ये दोनों जो है ये इंटरनल रिले स्विच है। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने मोटर ऑन का बटन प्रेस किया, ऑन का बटन प्रेस किया तो क्या होगा, मोमेंटरीली ये जो है ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई जो है ये मोटर को मिलेगा। तो मोटर जो है वो घूमना चालू होगी, मोटर घूमना चालू होगी तो ये जो है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये ऑन स्विच को रिलीज भी कर दिया तो भी जो है सप्लाई जो है ये यहाँ से इसको मिलते रहेगा और हमको जो है वो ऑन स्विच प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमको अभी
ये जो लैच सर्किट जो हमने यूज किया, ये जो इंटरनल रिले सर्किट जो या इंटरनल रिले स्विच यूज किया, उससे हमको ऑन की बटन प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑन स्विच प्रेस किया तो सप्लाई जो है वो मोटर को मिलता है, क्योंकि जो ऑफ स्विच है ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, तो नॉर्मली क्लोज स्विच होने की वजह से सप्लाई जो है ये मोटर को मिल रहा है। तो जैसे ही सप्लाई मोटर को मिलेगा, मोटर ऑन हो जाएगी, और सेम टाइम पे ये जो इंटरनल रिले स्विच है मोटर का, जो कि नॉर्मली ओपन है, ये क्लोज हो जाएगा, और X1 स्विच रिलीज भी कर दिया तो भी जो सप्लाई है ये यहाँ से जो है ये मोटर को मिलते रहेगा और मोटर चालू रहेगी। और जब मोटर ऑफ करनी है तो ये ऑफ वाला स्विच जो है ये प्रेस किया, मोमेंटरीली प्रेस किया, तो यहाँ से सप्लाई जो है, सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, सप्लाई स्टॉप हो जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी, और मोटर स्टॉप होने की वजह से ये जो इंटरनल रिले स्विच है ये स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद जो है मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक? तो ये जो मैंने मोटर का इंटरनल रिले स्विच ये ऑन स्विच के पैरेलल में लगाया, इसको बोलते हैं लैचिंग और लैच लॉजिक। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सप्लाई को लैच कर दिया, वहाँ पे लॉक कर दिया उसको, ये सप्लाई को टूटने नहीं दिया। ऑन स्विच मोमेंटरीली प्रेस करने के बाद उसको रिलीज भी कर दिया, तो भी सप्लाई जो है ये यहाँ पे लॉक हो गया, तो इसको बोलते हैं लैच लॉजिक। ओके, तो ये आपको समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके, बाकी लोग किसी को कोई डाउट होगा तो अभी पूछो। सर वो ऑफ स्विच हमेशा हाँ, क्लोज ही रहता है ना? ऑफ वाला हमेशा हाँ, ऑफ वाला जो क्लोज स्विच रहता है है ना? वो नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी ऑफ का जब अपन यानी बटन प्रेस नहीं किया है, ऑफ वाला बटन प्रेस नहीं किया है, तो ये ऑफ रहेगा, और जब हम बटन को ऑपरेट करेंगे तो ये मोमेंटरीली जितने देर के लिए बटन अपन ऑन करेंगे उतने देर के लिए ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ऑफ का बटन रिलीज कर दिया तो ये फिर से क्लोज हो जाएगा, यानी नॉर्मली क्लोज है। ऑपरेट करने के बाद ओपन होता है, लेकिन अगर ऑपरेट नहीं किया है तो वो नॉर्मली क्लोज है। ओके सर। वजह से क्लोज होने की वजह से यहाँ से अगर ऑफ की बटन प्रेस नहीं किया है तो सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर हमने ऑफ की बटन प्रेस की है तो ये यहाँ से सप्लाई को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ओके, यस सर। so this is latch logic. तो ठीक है, अब 12 बज रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। हमें अटेंडेंस लिहिली आहे का? हो सर, घेतली. बरं, ठीक आहे. सो थँक यू व्हेरी मच अँड हॅव अ नाईस डे. यू कॅन लीव द मीटिंग. थँक यू. थैंक यू सर. थँक यू.